ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପଢ଼ିବା। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବା ବାକ୍ୟ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ତାର ପରିଭାଷା କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଡେଫିନେସନ୍ ବା ପରିଭାଷା। ଏ କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ଗିଭିଂ ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେନ୍ସ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। କମ୍ବିନେସନ୍ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇଥିବ କାହାର ନା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ୱାର୍ଡସ୍ର, which gives a complete sense, giving a complete sense or which gives a complete sense, ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଯେ ଯାହାର ଅର୍ଥ ବୁଝି ହେଉଥିବ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି କ'ଣ ବୁଝିଲ ନା, କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ସମାହାର, ହ୍ୱିଚ୍ ଗିଭ୍ସ ଯିଏ ଆମକୁ ଦିଏ କ'ଣ ନା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେନ୍ସ, ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ଦିଏ, ତାକୁ କହନ୍ତି କ'ଣ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ମୁଁ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ବୁଝିନିଅ। ଦ କ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସ୍ଲିପିଂ ଅନ୍ ଦ ମ୍ୟାଟ୍, ବିଲେଇଟି ମ୍ୟାଟ୍ ଉପରେ ଶୋଇଅଛି। ଦେ ଆର୍ ପ୍ଲେଇଂ ଫୁଟବଲ୍, ସେମାନେ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳୁଅଛନ୍ତି। ଦି ସନ୍ ଇଜ୍ ସାଇନିଂ ବ୍ରାଇଟଲି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ତେଜି ସେ ପ୍ରଖର ରୂପେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଚମକୁଛି। ଆଇ ଏନ୍ଜୟ ରିଡ଼ିଂ ବୁକ୍ସ, ମୁଁ ବୁକ୍ ରିଡ଼ିଂ ବା ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ବହି ପଢ଼ିବାରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରେ। ୱି ଆର୍ ସୋ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟ୍ରିପ୍, ଯେଉଁ ଟ୍ରିପ୍ରେ ଆମେ ଯିବା ଆମେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଭ୍ ୟୁ ଡନ୍ ୟୋର୍ ହୋମୱାର୍କ, ତମେ ତୁମର ହୋମୱାର୍କ ସାରିଦେଇଛ କି, କରିସାରିଛ କି। ମାଇ ମଦର୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ୱେଲ୍, ମୋ ମାମା ବା ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିଲି, ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ, ଦ କ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସ୍ଲିପିଂ ଅନ୍ ଦ ମ୍ୟାଟ୍, ଏଇ ବାକ୍ୟଟି ପଢ଼ିବାକୁ ବିଲେଇଟି ମ୍ୟାଟ୍ ଉପରେ ଶୋଇଅଛି। ଦେ ଆର୍ ପ୍ଲେଇଂ ଫୁଟବଲ୍, ଦେ ମାନେ ସେମାନେ, ପ୍ଲେଇଂ ଦେ ସହିତ ଆର୍ ଅଛି, ଇଜ୍ ନାହିଁ। ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି ନା ସବଜେକ୍ଟ ସହିତ ହେଲ୍ପିଂ ବାର୍ ସଂଯୋଗ ଠିକ୍ରେ ଅଛି, ନହେଲେ ଏ ବାକ୍ୟଟି ଭୁଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଦେ ପାଖରେ ଇଜ୍ ଲାଗିବନି। ଯଦି ଏଇଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ରେ ଅଛି, ଆଇଏନ୍ଜି ଫର୍ମ ଅଛି, ନା କ'ଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ନିଆ ହେଇଛି ହେଲା। ତେଣୁ କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡ ହ୍ୱିଚ୍ ଗିଭ୍ସ ଅସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମିନିଂ, ଯିଏ ଆମକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମିନିଂ ବୁଝେଇ ପାରୁଛି ତାହା ହିଁ ହେବ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଏମିତି ନହେଲେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଇପାରିବନି, ଫ୍ରେଜ୍ ହେଇଯିବ ବା ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥବିହୀନ ବାକ୍ୟ ରହିବ। ଦ କ୍ୟାଟ୍, ଦ ମ୍ୟାଟ୍, ସ୍ଲିପିଂ, ଏମିତି ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ବାକ୍ୟ ଅର୍ଥବିହୀନ ହେଉଛି। ଯଦି ଆମେ ସିଷ୍ଟମେଟିକଲି ଲେଖିବା, ଦ କ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍, କ୍ୟାଟ୍ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ସବଜେକ୍ଟ, ଇଜ୍ ସେଥିପାଇଁ ଇଜ୍ ଲାଗିଛି, ଆର୍ ଲାଗିନାହିଁ। ସ୍ଲିପିଂ ଶୋଇଅଛି କୋଉଠି ନା ଅନ୍ ଦ ମ୍ୟାଟ୍, କୋଉଠି ଶୋଇଛି ନା ମ୍ୟାଟ୍ ଉପରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମିନିଂ ବୁଝାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ୟାର ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଡେଫିନେସନ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ସାର୍ଥକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା, ସାର୍ଥକ ରୂପ ଦେଇପାରିବା। ଏ କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଗିଭ୍ସ ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମିନିଂ ଇଜ୍ ଗିଭିଂ, ଏ କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ଗିଭିଂ ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେନ୍ସ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ ମାନଙ୍କର କମ୍ବିନେସନ୍ ବା ସମୂହ ଅଛି, ସେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଉଛି ନା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେନ୍ସ ମାନେ ଅର୍ଥ ମିନିଂ ଦେଉଛି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବାକ୍ୟ। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା different kinds of sentence, କେତେ ପ୍ରକାର ନା 4 ପ୍ରକାର। there are 4 types of sentence, ଅଲଗା ଅଲଗା କ'ଣ କ'ଣ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ, assertive sentence, imperative sentence, interrogative sentence, exclamatory sentence। assertive sentence ତାକୁ ଆମେ ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍ ବି କହିପାରିବା। କାହିଁକି, ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ବା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାହା ବିଷୟରେ ବା ନିଜ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ assertive sentence, ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଆମ କାହା ବିଷୟରେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଦେଉ ବା କାହା ବିଷୟରେ କିଛି କହୁ, ତାକୁ assertive sentence ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଠି ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି, ତମେ ଠିକ୍ରେ ବୁଝିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆଗେ ମନେ ରଖିଥାଅ, different kinds of sentence 1 2 3 4, there are 4 types of sentences, assertive, imperative, interrogative, exclamatory। এই ଚାରିଟାକୁ ହିଁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। assertive ବା ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? A sentence that asserts or states, ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି something is called assertive sentence। ଜଣକ ବିଷୟରେ ବା କୌଣସି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ବା ନିଜ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉ ବା ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁ, ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁ, ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ assertive sentence। ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫାର୍ମର, ଏଇଠି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଇଛି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫାର୍ମର୍ସ ଆର୍ ଭେରି ହାର୍ଡ ୱାର୍କିଂ। ଆମେ ଯଦି ଭାରତୀୟ କୃଷକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଦେ ଆର୍ ଭେରି ହାର୍ଡ ୱାର୍କିଂ। ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ଷ୍ଟେଟ୍ କଲେ, ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ବା କୃଷକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫାର୍ମର୍ସ ଆର୍ ଭେରି ହାର୍ଡ ୱାର୍କିଂ। ଆମେ ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା,
द सन राइजेस इन द ईस्ट समस्त जानते सूर्य पूर्व दिगरे उदय हुअन्ति तेणु आम जदि सूर्य विषय कौन वर्णना आई स्टेट दैट द सन राइजेस इन द मुझे कहबी ताले द सन राइजेस इन द ईस्ट सूर्य पूर्व दिगरे उदय हुअन्ति ताले आमे कौन कले ना वर्णना कले ये जो दुईटी वाक्यर एटा वर्णनात्मक वाक्य तेणु कह जाए एटाकू वर्णनात्मक वाक्य एसर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट होची इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस कोड यूज हुए आदेशात्मक ऑर्डर दियंती आदेश दियंती रिक्वेस्ट करंती तेणु आदेशात्मक वाक्य कह जाए कि एठी तीनिटी दिखाई एन ऑर्डर एन एडवाइस कौन रिक्वेस्ट आम जन जन को ऑर्डर भी दऊ स्टॉप डूइंग दिस एडवाइस डोंट डू दिस है रिक्वेस्ट करू प्लीज ए कामटा कर दियो तेणु मु तार सेंटेंस को जी आर पेज रे तुमको पढ़े देवी आगे बुझे दूची आमे ए सेंटेंस वर्णनात्मक आउ इंपेरेटिव सेंटेंस ए दुईटार फरक कौन कि जानव दुईटा दुईटा को सीना तुम मैच कले यार डिफरेन्सेस जानले जानव जे एटा वर्णनात्मक वाक्य एटा इंपेरेटिव सेंटेंस एटा एसर्टिव एसर्टिव में कही क्या विषय बा निज विषय कौन वर्णना कले ये फार्मर मान विषय वर्णना कराई सन विषय वर्णना कराई किंतु इंपेरेटिव सेंटेंस रे ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट ये ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट केमी दिखाई तुमको ये नेक्स्ट पेज रे बुझे दिए। अच्छा सुन क्लोज द डोर जने जन को ऑर्डर दौची कबाटी बंद कर डू योर होमवर्क बिफोर यू स्लीप ये एडवाइस दिया होची तुम होमवर्क टा तुम्हें शोवा पूर्व कर देथिले काली स्कूल जीव सुविधा हम ये गोटे रिक्वेस्ट प्लीज पास द सल्ट जदि सल्ट डिबाटी दूर अच्छी आम जन को रिक्वेस्ट करचे प्लीज पास द सल्ट मो आड़ को लुण टिके पास कर दियो तापरे डू नॉट पार्क योर व्हीकल हियर ये गोटे जगह जोटी आमे आमर स्कूटी है गाड़ी है कार है आम ये पार्क करवानी बोली गोटे बोर्ड लिखा है डू नॉट पार्क योर व्हीकल हियर देख केमी आम इंपेरेटिव सेंटेंस रे कौन करते ऑर्डर दिखाई ऑर्डर रे है क्लोज ऑर्डर रे कौन है क्लोज द डोर रिक्वेस्ट रे कौन है प्लीज पास द सल्ट एडवाइस रे कौन है डू योर होमवर्क बिफोर यू स्लीप शोवा पूर्व तुम तुम होमवर्क कर ताले जो सेंटेंस मानकर जो वाक्य मानकर देखो आदेश दिया जाउची हैं शट दी डोर कहुची सिट डाउन बोली कहुची से जगह रे कौन हम ना ऑर्डर दिगला आउ जो प्लीज कहीकि रिक्वेस्ट करके गोटे काम होची सेठी हला रिक्वेस्ट प्लीज पास द सल्ट प्लीज डू दिस डू ए फेवर फॉर मी आउ जोटी उपदेश दिया होची वी शुड नॉट डू दिस आम ये कम करवा उचित नुह वी शुड नॉट डू दिस वर्क ये कामटा कले आमर किसी भूल हो जाई पारे तेणु से कौन होची ना उपदेश दिया होची जोटी एडवाइस माने उपदेश ये देख मुझे लिखी एडवाइस माने एडवाइस अच्छी ऑर्डर अच्छी रिक्वेस्ट अच्छी ऑर्डर रे ऑर्डर दिया जीवो प्लीज सिट डाउन अच्छा रिक्वेस्ट रे कहा रिक्वेस्ट करिवो आउ एडवाइस रे कौन हम ना कहा आमे उपदेश दे परिबा ए सब जाउची इंपेरेटिव सेंटेंस बा आदेशात्मक वाक्य भितर। नेक्स्ट को जीवा 3 नंबर रे इंटरोगेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव रो अलगा गोटे वर्ड होची क्वेश्चन आमे कहा जिते कौन लोक को कौन पिला को क्या भी जब गोटे क्वेश्चन पचारती से वाक्यटी हूँ इंटरोगेटिव सेंटेंस ए सेंटेंस दैट इनक्वायर्स आस्क समथिंग इनक्वायरी करे बा आस्क पचारे समथिंग इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस आम केते क्वेश्चन आम पचारू सका व्हाट इज दिस व्हाट इज दैट हाँ वेयर आर यू गोइंग हैज द सर्वेंट कम बैक पिलाटी सर्वेंट बा चाकरटी फेरी आसी कि व्हाट इज दिस क्वेश्चन अबाउट व्हाट इज दिस पोएम अबाउट एमती गुड़ाए क्वेश्चन जो आम पचारती तेणु हाउ आर यू व्हाट इज योर नेम ये सब क्वेश्चन गुड़िक इंटरोगेटिव सेंटेंस रे जाए ये बहुत इजी बुझीबा आम प्रश्न करती से प्रश्न गुड़िक ही इंटरोगेटिव सेंटेंस बहुत इजी कथा इनक्वारी करती कौट जिनस विषय इनक्वारी करती एटा कौन सेटा इंटरोगेटिव सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ए सेंटेंस दैट expresses something strong and sudden feeling or emotion is called an exclamatory sentence कौन है ना व्हाट ए ब्यूटीफुल सीनरी इज दिस व्हाट ए टेरिबल मूवी वाओ दैट्स ग्रेट न्यूज आम तले गोटे जिनस देखती गोटे आश्चर्य प्रकार जिनस देखती एक्सक्लामेटेशन आश्चर्यजनक वाक्य
आश्चर्यचकित हो जाती कौन से गोटे जिनस देखिए गोटे सीनरी देखिकी गोटे मुवी देखिले गोटे सीरियल सीन देखीदे बा गोटे कौटी मैच जीतीगले हाँ क्या गोटे कंग्राचुलेसन देदेले गोटे पिला गोटे क्लास रे फास्ट हो डिस्ट्रिक्ट टपर हो जाइए गोटे पिलाटे ऑल इंडिया टपर हो जाइए आम आश्चर्य हो जाती वाओ बढ़िया कला तो व्हाट ए ब्यूटीफुल सीनरी सपोज आम चिलिका जाइछंती आम देखिकी चिलिकार जो नील तरंगमाला तापर पक्षी आउ सुंदर सुंदर दृश्य देखिकी आम मन में गोटे हठात गोटे इमोशन डेभलप करे व्हाट ए ब्यूटीफुल सीनरी इज दिस मोहर अचानक बाहर जाए अचानक गोटे सडन फिलिंग आस जाए अच्छा व्हाट ए टेरिबल मुवी आम कौन से भूत प्रेत मुवी देखिकी भयानक मुवी देखिकी डर जाए व्हाट ए टेरिबल मुवी अच्छा वाओ दैट्स ग्रेट न्यूज तो गोटे भल न्यूज गोटे देखिए देदेला आम पाठ पढ़ वाओ दैट्स ग्रेट न्यूज आम यही सब आश्चर्यजनक वाक्य जो कहती कौन कहुए एक्सक्लामेटरी गोटे सडन फिलिंग गोटे सडन मुहर बाहरी आसे या कौन माने कौन अपेक्षा ना देख सडन हठात गोटे फिलिंग आसे और इमोशन गोटे मनर गोटे आवेग आसे ताको कौन कहुए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पिला माने 4 प्रकार सेंटेंस विषय पढ़िल मोर कहिबार उद्देश्य होची जे जहाँ मु पढ़ाऊँगी ताको बारंबार टिके रिपीट करिवो बारंबार रिपीट करिया द्वारा आमर कौन हम ना आम जिनटा को भल भाव में बुझा देख डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंस को आम 4 थर 4 थर 5 थर पढ़ा ए 4टी एसर्टिव सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस गोटे हूँ रिपिटिशन आम सब रिपीट करवा पाठ को तापर गोटे कंपेरिजन आम गोटे जिनस सहित गोटे जिनस कंपेयर कले आम डिफरेन्स जापर डिफरेन्स जापर आ पाठटा आम मन में इम्प्रिंटेड हो मन में आम जो आलोचना करवा डिफरेन्सेस देखा यहाँ कौन यहाँ ताठू अलग केमती इंटरोगेटिव क्वेश्चन पचरा हो एक्सक्लामेटरी आश्चर्य हो जाए गोटे जिनस देखिए क्वेश्चन पचारे डब्ल्यू व्हाट इज योर नेम व्हाट इज दिस हाँ हाउ आर यू एमती डब्ल्यू एच क्वेश्चन पलि आक्सक्लामेटरी वाओ हिपी हिपी घूरे एमती गोटे क्वेश्चन आम मन में गोटे आश्चर्यजनक फिलिंग आस जाऊँगी एसर्टिव आम स्टेटमेंट दौचे इंपेरेटिव आम क्या आदेश दौचे क्या ऑर्डर दौचे आउ क्या रिक्वेस्ट करचे आम सब कौन करवा जिते सेंटेंस डेफिनेशन तो पढ़ले किंतु सेंटेंस जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ सेंटेंस आम जो पढ़ा आमर कौन हम ना आम सब गोटे प्रकार सेंटेंस को आ गोटे प्रकार सेंटेंस को जंप करवा पुणी बैक करके आम कंपेयर करवा आम ये तुलना करवा ताहले आम कौन करवा पाठटी भल भाव जाना आम निजे निजे केते गुड़िक वाक्य भी आम कौन करवा निजे निजे तैयारी करवा आम वाक्य सब तैयारी करवा अच्छा वीडियो टी देख लो आउ तुम मन जो कौन सी जदि क्वेश्चन थाए मन में किसी भी बुझीबार थाए कमेंट सेक्शन में मत पचार मु आंसर देवी ना आ गोटे वीडियो मु करके पोस्ट करी आशा करुच्ची वीडियो टी तुमको भल लगी आउ किछि तथ्य जानी पारथिबो आउ वीडियो टी देखि पिला बहुत बहुत धन्यवाद।